پہلی چنگاری ناول کی 264 ایپیسوڈ میں ویلکم۔ امید ہے یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی۔ سفید کرتا پاجامہ اور کالے رنگ کا چشمہ لگائے جب میں گاڑی سے اترا تو گلی میں موجود ہر شخص میری جانب متوجہ ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کچھ میرا گیٹ اپ ڈیٹ تھا، کچھ ڈریسنگ نے میری اچھی خاصی ٹور بنا دی تھی۔ قد کاٹ اور جسمانی لحاظ سے ویسے بھی میں فٹ تھا، اوپر سے بڑی نوکدار مونچھیں، داڑھی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، ہر دیکھنے والے کی آنکھ مجھ پر ٹھہرتی نہ تو اور کیا کرتی۔ اس وقت میرا آنٹی فوزیہ اور عظمیٰ نسرین سے ملنے کو بہت دل کر رہا تھا، مگر بھابھی کی وجہ سے میں نے آنٹی فوزیہ کے گھر جانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا اور گیٹ کی جانب بڑھا۔ ابھی میں گیٹ نوک کرنے ہی لگا تھا کہ اس سے پہلے ہی گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھل گیا، جیسے بھابھی پہلے سے میری منتظر تھی۔ میں گیٹ سے اندر داخل ہوا تو بھابھی بولی، اتنی دیر کر دی؟ میں نے کہا کافی دیر بعد دوستوں سے ملا تھا، گپ شپ میں دیر ہو گئی۔ یہ کہہ کر میں گھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، بھابھی اپنے سامان نکال لیا ہے؟ بھابھی بولی، ہاں سامان تو میں نے کب کا نکال لیا ہے۔ بھابھی کی بات سنتے ہی میں جھٹ سے بولا، تو پھر چل۔ بھابھی جلدی سے میرے بازو میں اپنا بازو ڈال کر میرے ساتھ چپکتے ہوئے بولی، چلتے ہیں۔ اب جلدی کیوں پڑ گئی ہے؟ میں نے کہا جلدی تو نہیں ہے، مگر اپنے اب یہاں رک کر کیا کرنا ہے؟ بھابھی بولی، اندر چلو پھر بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ بھابھی کے تیور دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ بھابھی نے کون سی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اوکے چلو، اب میں ذرا گن مینوں کو بتا دوں کہ مجھے تھوڑی دیر لگ جانی ہے۔ بھابھی بولی، میں یہاں ہی کھڑی ہوں، تم بتا کر جلدی آؤ۔ بھابھی کے بازو کی گرفت سے اپنا بازو نکال کر گیٹ سے باہر نکل کر گن مینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تھوڑا ٹائم لگ جانا ہے، کچھ سامان نکلنا ہے، تب تک تم لوگ گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ۔ میری بات سن کر دونوں نے اوکے باس کہا اور گاڑی کے پیچھے ڈالے سے اتر کر گاڑی کے اندر بیٹھنے لگے۔ میں آنٹی فوزیہ کے گھر کی طرف نظر ڈال کر واپس گھر کے اندر داخل ہو کر میں نے گیٹ لاک کیا تو بھابھی پھر سے میرے بازو کے ساتھ چپک گئی۔ جلدی سے دروازہ لاک کیا اور پلک جھپکتی میرے ساتھ چپک کر کہے جا رہی تھی، اتنے دن لگا دیے تم نے، ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ تمہاری جدائی میں کیسے دن گزار رہی ہوں۔ جب سے گئے ہو ہر گھڑی تمہارے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ بھابھی کی باتیں اور اس کا انداز دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ یہ تو معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ میں نے تو بھابھی کے ساتھ جو بھی کیا تھا صرف شیطان کے بہکاوے میں الف کر کیا تھا، اس میں دلی طور پر پھر ذہنی طور پر میری ایک بھی رضامندی شامل نہیں تھی۔ ویسے بھی پہلے جو کچھ ہو چکا تھا اس میں 80% بھابھی کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ میں نے تو کبھی بھابھی کو غلط نظر سے دیکھنا تو بہت دور کی بات، کبھی بھابھی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ بھابھی کے ساتھ بے شک میرا رشتہ بڑے احترام کا تھا، مگر وہ ایک نوجوان خوبصورت پرکشش تھی۔ نامحرم کا خلوت میں ایک جگہ پر ہونا شیطان کا پسندیدہ مقام ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں شیطان چاروں طرف سے حملہ اور ہو کر ایک کو تو لازمی بہکا دیتا ہے۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود چند لمحوں میں فطری طور پر گرمی میرے دماغ پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ میں کچھ دیر تو ہاتھ نیچے کیے اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا رہا، مگر کب تک بردش کرتا۔ اچانک دروازے پر دستک نے ہمیں واپس ہوش دلایا۔ میرے ساتھ بھابھی بھی ایک دفعہ تو ڈر گئی اور بولی، اس وقت کون آ گیا ہے؟ جو بھی ہے مجھے باہر جا کر دیکھنا پڑے گا۔ این موقع پر بھابھی بیچاری کا جدائی کا سپنا چکنا چور ہونے پر بھابھی غصے سے تلملاتی ہوئی بولی، جلدی جاؤ، اگر گلی کا کوئی فرد ہوا تو اسے باہر سے ہی واپس بھیج کر جلدی واپس آؤ۔ یہ کہہ کر بھابھی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ میں نے کہا، فی الحال تو اب کپڑے پہن کر اپنا حلیہ درست کر لو، باہر کوئی جانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی دوران پھر سے بیل بجنے لگی۔ میں جلدی سے بیڈ سے چھلانگ مار کر نیچے اترا۔ میں کرتا پہن کر کپڑے کو درست کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنی مونچھیں اور داڑھی پر ہاتھ پھیر کر جلدی کمرے سے باہر نکل کر گیٹ کی جانب بڑھا۔ اس دوران تیسری دفعہ بیل بج چکی تھی۔ گیٹ کی جانب جاتے ہوئے اچانک میں نے گیٹ کھولنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے بیٹھک کا رخ کیا تاکہ جو بھی ہو اسے بیٹھک میں ہی ملو۔ بیٹھک میں جا کر میں نے بیرونی دروازے سے باہر جھانکا تو آنٹی فوزیہ گیٹ کے پاس کھڑی آن مین بحث و مباحثہ میں مصروف تھی۔ مجھے پہلے ہی کافی حد تک یہ بش تھا کہ آنٹی فوزیہ ہی ہو سکتی ہے، مگر میں نے جان بوجھ کر بھابھی کے سامنے آنٹی فوزیہ کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ بھابھی نے مجھے باہر جانے سے منع کر دیا تھا تو خود ہی واپس چلی جائے گی، مگر میں یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بعد ازاں بھابھی کو میرے ساتھ گھر سے دیکھ کر آنٹی کسی شک میں مبتلا ہو جائے۔ جیسے ہی باہر نکلا تو آنٹی فوزیہ مجھے دیکھتے ہی میری جانب بڑھی اور اسد پیچھے آنے لگا تو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ آنٹی فوزیہ دور سے ہی صدقے واری جاتے ہوئے میرے قریب آئی اور آتے ہی میرا ماتھا چوم کر بولی، ہائے صدقے جاواں، میرا شیر ببر آ گیا۔
कहाँ चले गए थे? मैंने तो हर तरह की कोशिश की कि किसी तरह तुम्हारा पता चला सकूं। पता तो क्या चलना था, मुझे तो तुम्हारे शहर वाले घर का भी मालूम नहीं पड़ा। ये कहकर आंटी मुझे सर से पांव तक देखते हुए दुआया कलमात कहकर बोली, अब तो तुम इतने बड़े आदमी हो गए हो कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे बॉडीगार्ड से इजाजत लेना पड़ती है। मैंने कहा, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं आज भी आपके लिए वही यासिर हूं। ये कहकर मैंने आंटी को अंदर आने का कहा। आंटी बैठक में दाखिल होते हुए बोली, मुझे तो सामने वालों के बच्चे ने बताया कि यासिर बड़ी सारी गाड़ी में आया है। मैं तो सुनते ही दौड़ी चली आई, मगर कितनी देर तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे रोके रखा। वो कमबख्त तो मुझे गेट के पास भी नहीं जाने दे रहा था। मुश्किल से इसकी मिन्नत रुक करके इसे बैल बजाने का कहा। मैंने कहा, इसे आपका पता नहीं होगा, इसलिए इसने ऐसा किया है। आपको पता तो है, जब से सामने वाले पठानों की लड़की का मसला बना तब से हालात कैसे चल रहे हैं। आंटी फौजिया एकदम चौंक कर बोली, ले दस, तुम्हें देखकर मैं ये पूछना ही भूल गई कि मुझे तो पता चला था कि तुम्हारी मंगेतर ज़ौफिशा और उसकी छोटी बहन माजबीन को उनके घर से अगवा कराया गया था और तुम उनके पीछे गए थे, इसलिए 1 महीना से गायब रहे, न दुकान खोली, न ही तुम्हारे बारे में किसी को खबर थी कि तुम किस जगह चले गए हो। जब से उज़्मा ने मुझे ये खबर दी, मैं रू कर हलकान हो गई कि ले 10 बैठे बिठाए कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी। इस दिन से मैं तो तुम्हारी खैरियत की दुआएं मांगती रही हूं। मैंने कहा, बस अब की दुआओं से सब कुछ ठीक हो गया है। ज़ौफी और माही भी खैरियत से है, और ये खबर अपने गलत सुनी है कि उनको किसी ने अगवा किया है। उनको अगवा नहीं किया गया था, बल्कि मैंने खुद उनको किसी और जगह भेजा था, और मैं खुद भी कुछ दिनों के लिए साइड पर हो गया था। वो आंटी बोली, ले 10, लोग भी कैसे गंदे हैं, असल बात का पता नहीं होता, अपने पास से ही मन घड़त कहानी घड़ लेते हैं। मैंने कहा, बस ऐसे ही है, अब किसी की जबान तो रोक नहीं सकते। आंटी हुई मगर बोली, तुम उनको लेकर क्यों गए थे? कोई टेंशन वाली बात बन गई थी? आंटी की बिलावजा की तवालत से मैं चढ़ सा गया था, मगर उनकी इज्जत और एहतराम को खातिर में लाते हुए बर्दाश्त कर रहा था। आंटी की बात सुनकर मैंने कहा, आपको पता तो है कि सामने घर में जो पठान रहते थे, उनका जो मामला हुआ था, इसी वजह से दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि धमकियां मिलने लगी थीं। इसलिए कुछ दिन हम अंडरग्राउंड हो गए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि किसने ये अगवा वाली अफवाह फैला दी है। आंटी बोली, पता नहीं, मुझे तो उज़्मा ही बता रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ओके है। आंटी बोली, चल दफा मार, ये बता तेरा अबू नाजी और बाकी के घर वाले सब ठीक हैं? मैंने कहा, सब ठीक हैं। आंटी बोली, अगर मैं शाम को आती तो तुमने तो खामोशी से वापस चले जाना था। मैंने कहा, नहीं आंटी, ये कैसे मुमकिन है कि मैं अब से मिले बगैर वापस चला जाता? मैं अभी कुछ देर बाद आपके घर आने वाला ही था। आंटी बोली, अकेले ही आए हो या साथ में कोई और भी आया है? मैंने कहा, भाभी शाइस्ता साथ आई है। मैं चौधरी साहब से मिलने के लिए गांव आ रहा था तो भाभी ने घर से अपना कुछ सामान लेना था। वो कहने लगी, मुझे भी साथ ले चलो। इसी दौरान भाभी बैठक में दाखिल हुई। भाभी की जब आंटी फौजिया पर नजर पड़ी तो इस वक्त भाभी की बेबसी देखने के लायक थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो आंटी को आला किस्म की गंदी गाली देकर पूछती कि तुम अभी आना तो कुछ देर बाद नहीं आ सकती थी। मगर भाभी को ये अच्छे से मालूम था कि आंटी फौजिया का हमारे घर फैमिली मेंबर जैसा रिश्ता है, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़कर सलाम करते हुए इंडी से सर पर प्यार लेने लगी। भाभी को देखकर आंटी पहले तो सदक़े वारी जाते हुए मस्के लगाने लग गई, फिर साथ ही भाभी के साथ गिले शिकवे करना शुरू हो गई कि ई शहर जाकर गांव वालों को भूल ही गए हो। अभी भाभी और आंटी के दरमियान मुकालमा जारी था कि उज़्मा और नसरीन आगे पीछे बैठक में दाखिल हुईं। दोनों की जब मुझ पर नजर पड़ी तो दोनों ही अपने जज्बात छुपाते हुए सलाम दुआ करने लगे, बल्कि नसरीन ने अपनी आदत से मजबूर होकर हाथ के इशारे से कहा, वाह भाई वाह, क्या बात है, मगर उसके अंदाज में पहले जैसी शौखी नहीं थी। इसका नजीब पिन देखकर मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ कि ये तो इतनी मुनफट है, जब तक कोई ना कोई झिल्ली भीनी बात ना कर ले तब तक इसे सुकून नहीं आता। मगर आज सिर्फ हाथ के इशारे से ही अपनी आदत पूरी की थी। आंटी की गलत टाइम पर एंट्री मुझे भी नागवार गुजरी थी, मगर उसके बावजूद उन सब से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। उनसे मेरा बचपन का ताल्लुक था। देखकर मिलकर अपनायत का एहसास हो रहा था, जैसे इनसे कोई खूनी रिश्ता हो।
इस दौरान चारों को एक साथ अपने सामने देखकर मेरे दिमाग में जो ख्याल आया, मैं बमुश्किल अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए ज़ेर लब मुस्कुरा दिया कि उन चारों को मैं मिला हुआ हूँ और चारों ही इस बात से बेखबर हैं कि मैं सबसे मुलाकात कर चुका हूँ। इस बात को लेकर मैं बमुश्किल अपनी हंसी पर कंट्रोल कर रहा था। हालांकि आम हालात में अगर एक टाइम में दो गर्लफ्रेंड एक ही जगह मिल जाएं तो अच्छा खासा मर्द अपना भांडा फूट जाने के डर से खौफजदा हो जाता है। यहाँ तो दो की बजाय चार हैं। फिर भी मैं मुतमईन था, बल्कि इस इत्तेफाक पर खुश हो रहा था। इसकी भी एक वजह थी और वो वजह ये थी कि चारों ही मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, यानी चारों की मेरे दिल में कोई जगह नहीं थी। इसलिए मैं बेफिक्र था। बल्कि इससे मुझे ये फायदा भी हो रहा था कि चारों भी नॉर्मल अंदाज में मुझसे बातचीत कर रही थीं, क्योंकि उनको अपनी अपनी फिक्र थी कि कहीं उनकी गलत हरकत अच्छे छेवरे पिन से दूसरे फर्द को शक न पड़ जाए। जबकि मैं रिलैक्स होकर पर एतमाद अंदाज में आंटी फौजिया और उसकी बेटियों से हम कलाम था। भाभी बेचारी बुरी तरह फंस गई थी। वो आंटी फौजिया से जान छुड़वाने के लिए बहाने तराश रही थी। ऊपर से उज़्मा और नसरीन भी आ गई थी। अभी बार बार आंखों से मेरी जानिब देखकर अपनी बेबसी का इजहार कर रही थी, मगर मैं भाभी की नज़रों को इग्नोर करते हुए आंटी से उनके हाल अहवाल पूछने लग गया। आंटी की हालत देखकर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि आंटी काफी परेशान नजर आ रही है। शायद ये माली तंगी का शिकार थी, इस वजह से परेशान थी। उज़्मा और नसरीन के चेहरे भी मुरझाए हुए थे। इस वक्त मेरी जेब में भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे, वरना इसी वक्त आंटी को कुछ पैसे दे देता। कुछ देर बाद भाभी उठते हुए बोली, यासिर काफी देर हो गई है, हमें अब घर चलना चाहिए। उम्मी और अबू ने आना था, कहीं वो घर न पहुंच गए हों। ये भाभी की बात सुनकर मैं चौंक कर भाभी की तरफ देखने लग गया कि पहले तो भाभी ने इस बात का जिक्र नहीं किया था। अब ये अचानक से भाभी के अम्मी अबू के आने का क्या सीन है। अगले ही लम्हे भाभी के चेहरे पर मक्कारी देखकर मैं समझ गया कि वो आंटी फौजिया लोगों से जान छुड़वाने के लिए ये झूठ बोल रही है। मजबूरना मुझे भी भाभी की बात की तायीद करते हुए उठना पड़ा। मैं उठते हुए बोला, आंटी मैं कल चक्कर लगाऊंगा, अभी घर पर मेहमान आते हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। भाभी मेरी बात सुनकर अंदरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, यासिर मैं थोड़ा सामान निकाल लूं, तुम जल्दी आ जाना। मैंने इस बात में सर हिलाकर हम कहा। आंटी उठते हुए बोली, पत्थर अगर ज्यादा सामान है तो मैं मदद कर दूं। भाभी बोली, नहीं आंटी, बस अपने 2-4 सूट निकालने हैं और तो कोई खास सामान नहीं है। ये कहकर भाभी आंटी का जवाब सुने बगैर दूसरे कमरे में चली गई। आंटी ने भाभी के सख्त रवैये को महसूस किया, मगर वो इस पर कुछ कहने की बजाय मेरी तरफ देखकर बोली, अच्छा हम चलते हैं, कल फिर लाजमी आना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी क्यों नहीं, दिल्ली में लाजमी आऊंगा। रात तक खाना भी अब की तरफ ही खाऊंगा। ये कहते हुए मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब में 3-4 हजार रुपए थे। मैंने 3,000 आंटी को देते हुए कहा, आंटी मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मजबूरी की वजह से ना तो आपके यहाँ चक्कर लगा सका और ना ही उज़्मा की सैलरी दे सका। अभी आप ये रख लें, कल आते हुए बैंक से पैसे निकलवा कर उज़्मा की सैलरी भी दे दूंगा। आंटी बोली, नहीं यार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम हमें अपना नहीं समझते जो तुम ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? मैं तो तुम्हें देखने के लिए दौड़ी चली आई थी। मैंने कहा, आंटी आपको मैंने हमेशा अपना ही समझा है, इसीलिए आपकी फिक्र रहती है। और ये हकीकत कि आप इस वक्त परेशान भी नजर आ रही हैं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि आपके घर का खर्चा उज़्मा की सैलरी से चलता है। आंटी बोली, वो तो ठीक है, मगर तुम पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। ऐसे मैं तुम्हें मजीद परेशान तो नहीं कर सकती। बाकी ऊपर वाले का शुक्र है कि वो खाने को रोटी दे देता है। मैंने जबरदस्ती आंटी की पैसे पकड़ाते हुए कहा, अगर आप मुझे अपना समझती हैं तो फिर ये पैसे रख लें। आंटी ने मुझे दुआएं देते हुए पैसे पकड़ लिए। साथ ही आंटी की आंखों में नमी देखकर मेरा दिल हल्को आ गया। मैं तड़प कर आंटी का हाथ पकड़कर बोला, क्या बात है आंटी, आप रो क्यों रही है? कोई परेशानी है तो बताएं। आंटी कुछ बोलने ही लगी थी कि उज़्मा जल्दी से आगे बढ़कर बोली, कुछ नहीं हुआ यासिर, अम्मी का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू हो जाती है। मैं उज़्मा की तरफ गौर से देखते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती माँ से इस लहजे में बात करते हुए? ये कहकर मैं आंटी के गालों को दोनों हाथों से लेकर बोला, आंटी उधर मेरी तरफ देखकर बताएं क्या परेशानी है? आंटी बोली,
एक हफ्ता पहले मैं और नसरीन नहर के पास कपास चुनने गईं तो जमींदार के बेटे ने नसरीन के साथ ये कहकर आंटी अधूरी बात छोड़कर फूट फूट कर रोने लग गई। आंटी की बात सुनकर मैं तड़प कर बोला, क्या क्या क्या? नसरीन के साथ कौन था वो? आंटी एकदम से मजीद ऊंची आवाज में जार ओ कतार रोने लग गई। मैं तो आंटी को परेशान हाल देखकर ये समझ रहा था कि आंटी माली हालात की तंगी की वजह से परेशान है, मगर यहां तो मामला ही और था। मैं आंटी से तफसील जानने की कोशिश कर रहा था, मगर आंटी ऐसे रो रही थी जैसे जमींदार के लड़के ने नसरीन की इज्जत लूट ली हो। मैं उज़्मा की तरफ देखकर बोला, अभी उज़्मा तुम बताओ क्या हुआ था? उज़्मा भी कुछ बताते हुए हिचकिचा रही थी। आखिर मैंने जून चलाकर अपने मखसूस अंदाज में सख्त लहजे में उज़्मा को डांटते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम गूंगी बनी हुई हो। मेरे सख्त लहजे और तहमकाना अंदाज से उज़्मा का पूरा जिस्म कांप उठा। उज़्मा जल्दी से बोली, इसने नसरीन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। नसरीन के चीखने की वजह से इसने नसरीन को मारा और बाद में घर आकर हमें जान से मारने की धमकियां भी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम सबको जान से मार दूंगा। मैंने कहा तुम लोगों को मना किया था कि दिहाड़ी करने जाती हो, अगर पैसों की ज़रूरत थी तो मुझे बोलती। उज़्मा रोती हुई बोली, कैसे बोलती तुम?